मिल सकता है। ओके, so if you go through the topics of the second chapter, that is process and process scheduling. Okay, I think this is ये मुझे लगता है लास्ट टाइम का है। लेट मी सी, थोड़ा सा कुछ चेंजेस अगर आए होंगे अभी के सिलेबस में तो 1 second, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई चेक फॉर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ देखते हैं नाम। हाँ, नहीं कुछ चेंजेस नहीं है, प्रोसेस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग ही नाम है, ठीक है। तो इन दिस यू कैन सी के वी हैव फ्यू सब टॉपिक लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस के स्टेट्स, प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच इज आल्सो कॉल्ड एज पीसीबी इन शॉर्ट। ओके, सो दिस इज 2.1. Then we have 2.2, that is all about the scheduling. We have two types of scheduling, that is preemptive and non-preemptive scheduling, which comes under the uniprocessor scheduling. Okay, multi-processor का हमें नहीं है, ठीक है। So we have uniprocessor scheduling in which we have preemptive and non-preemptive scheduling algorithm, and these algorithms are nothing but 1, 2, 3, 4, 5. So we will be learning total 5 algorithms in this one. Okay. In the last topic, that is 2.3, you can see we'll be learning about the threads. Then what are the threads, what are the different types of thread, user level thread and kernel level thread. Then concept of multi-threading, as you know, multi-threading के अंदर आपका जो हम लोग जिसको मॉडल्स बोलते हैं ना, वो आपका 1-to-1 मॉडल, 1-to-many मॉडल, तो वो सारे मॉडल्स भी आते हैं आपके। So we'll be learning in short about the multi-threading, okay, because this is just a concept. So let us start with the first topic, that is concept of a process. Okay, that is basically we'll start with first that on, ठीक है। तो ये syllabus हुआ, close all tabs, okay, then अच्छा यहाँ पर I'll stop sharing, then again I will start sharing my screen, Microsoft Whiteboard. Okay, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले सबसे पहले the topic name is process management. Okay, I can say process management or process and process scheduling, whatever, but it's all about the process. Okay, so this is nothing but process management. I think मेरी राइटिंग आप लोग को समझ में आएंगी। okay, इतनी इतनी बुरी भी नहीं मेरी राइटिंग। so process management, okay, this is our chapter number 2, chapter number 2। इसकी एक खास बात ये है कि हम लोग जितना लिखना चाहे इसमें लिखें और बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको पीडीएफ में सेव कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, तो आपके पास में नोट्स रेडी, ठीक है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ, दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा मुझे लगा, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आपके प्रोसेस के बारे में हम लोग करते हैं। ओके, एनीवन कुड एक्सप्लेन मी व्हाट इज प्रोसेस फर्स्ट? कोई मुझे बताएगा प्रोसेस का मीनिंग, प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएगा? हालांकि इन द अर्लियर लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है। आई थिंक द पीपल हु आर फ्रॉम डिप्लोमा कैन इजीली से विद द डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन ऑफ अ प्रोसेस। एनीवन? बोलो जल्दी से। Sir, when any application requests some kind of service from the operating system, it can be called as the process. ओके, सो टू द पॉइंट है, लेकिन थोड़ा कुछ मिसिंग है। कोई और? anyone anyone else can could explain me the concept of process in short? Okay, even if it is wrong, not an issue, but the thing is that you are at least trying, you are at least saying something. सो कोई काम को स्टेप बाय स्टेप करने को प्रोसेस बोलते हैं। Okay, ठीक है, that is the actual meaning, you know। yeah, please बोलो बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो जब वो एग्जीक्यूट करता है तो ओके, चलो ठीक है। आप लोग सबने ट्राई किए, appreciable। okay, now we'll come to the definition, or what we can say, we'll try to understand what is process। okay,
तो सबसे पहले प्रोसेस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. दिस इज द वन लाइन डेफिनेशन which I was expecting from people who are from DSY, मतलब कि DSY वालों, बिकॉज उन लोगों ने एक चीज पढ़ी है. इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम in execution. This is the one line definition of a process. Okay, आप समझते हैं इसका मतलब. ओके, इमेजिन करो आपका कंप्यूटर सिस्टम है. इन दिस कंप्यूटर सिस्टम यू हैव ओपन वन एप्लीकेशन लाइक VLC प्लेयर आपने ओपन किया है. ठीक है, अब VLC प्लेयर आपका यहाँ पे रन हो रहा है. तो जैसे ही हमने VLC प्लेयर के ऊपर हमने डबल क्लिक किया, ओके, सो व्हाट विल हैपन, this particular application will request to the processor. ठीक है, ये प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करके अपने आप को अच्छा चलो एक, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस वन, एक आपको दूसरी चीज मैं बताता हूँ. आप लोगों ने कभी टास्क मैनेजर ओपन किया है? कभी आप लोगों ने अगर टास्क मैनेजर ओपन किया होगा तो आपको टास्क मैनेजर के अंदर आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस रनिंग में दिखते हैं. ठीक है, चलो हम लोग सामने सामने करते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारी स्क्रीन रनिंग में है. मैं इसको, मुझे क्यों क्यों बार बार ये हो रहा है, मैं स्क्रीन ही शेयरिंग रखता हूँ. चलो, हाँ, तो सबसे पहले टास्क मैनेजर देखने के लिए यू कैन प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. ठीक है, सो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और ये आपका रहा टास्क मैनेजर. आई थिंक एवरीवन कैन सी दिस वन. ठीक है, सो नाउ इन विंडोज 10 इन विंडोज 11 इट हैज बीन, द GUI इज क्वाइट चेंज, बट पहले थोड़ा सा सादा आता था. तो ये रहा आपका टास्क मैनेजर. अब इस टास्क मैनेजर के अंदर क्या होता है बेसिकली, इस टास्क मैनेजर के अंदर इन द प्रोसेस टैब you have multiple tabs like processes, performance, app history, then startup, user, details, services, everything it will show. Okay, पहले सब साथ में था, अब उसने अलग अलग किया है. So we'll concentrate on the processes. Okay, देखो जो applications हमारे पास में अभी रन हो रही है, so all those applications you can see over here. Okay, right now I am executing Google Chrome also, in which this particular see, ये Google Chrome यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, तो Google Chrome भी ये यहाँ पे दिखा रहा है. so this, तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम मैंने ओपन किया हूँ, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक छोटा सा प्रोसेस बैकग्राउंड में यहाँ पर रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी जाकर मुझे वो गूगल क्रोम वहां पे दिख रहा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं उसको, अगर मैं यहाँ से उसको डिलीट कर दूं, एंड टास्क अगर करता हूं मैं, तो ये टास्क आपका मैं एंड कर दूंगा, तो वहां से गूगल क्रोम भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा. इसका मतलब ये कि स्पिरिचुअल जो यहाँ पर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकली वो वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल में जो बोलेंगे उसको सोल है, तो वो यहाँ पे रन हो रही है. ठीक है, तो जो एप्लीकेशन में ओपन करूंगा उसका एक प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, उसका प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा. तो आपको मैं बताता हूँ एक लाइव एग्जांपल. This is my Brave browser. Okay, this is my Brave browser. Okay, so right now it is not listing in this particular list of applications. Okay, as soon as I click on this Brave browser, then what will happen? See, आपका Brave browser यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो जैसे ही Brave browser ओपन हुआ, या उसका एक छोटा उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आ गया. ठीक है, इससे ये समझ में आया कि whenever you open any application program, उसका एक प्रोसेस यहाँ पर हमारे पास में आ जाए. ठीक है, टास्क मैनेजर में आएगा, और जैसे ही मैं इसको एंड टास्क करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको एंड टास्क करता हूँ, तो मेरा ब्रेव ब्राउजर भाग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्टली उसको डिलीट कर दिया, उसको मैंने उस टास्क को एंड कर दिया. ठीक है, तो आगे चल के विल बी लर्निंग अबाउट दी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, एवरीथिंग विल बी लर्निंग. ठीक है, so right now just for your understanding, whenever we open any application program in an operating system, so entity, we can call it as a process. That process is being created in the background. ठीक है, ये सब तो आपकी बैकग्राउंड में चल रहा है ना. आपका मेरा अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी ये चल रही है, तो उसका एक प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है. यू कैन सी द consumption, CPU consumption, memory consumption, and the disk consumption, network consumption, GPU consumption, सब दिखा रहा है. यहाँ पर अभी कहीं पर भी GPU consumption दिखा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मेरा GPU यूज हो रहा है. I have graphic card too,
तो ग्राफिक कार्ड भी बोला है कि यूज हो रहा है, लेकिन कभी कम ज्यादा हो रहा है मेरा। तो यहाँ सीपीयू यूजेज भी आप लोग देख सकते हैं। तो जूम इज यूजिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू को सबसे ज्यादा यूज करने वाला अभी फिलहाल मेरा जूम है, और कुछ टास्क मैनेजर भी यूज कर रहे हैं, बाकी तो बहुत ही कम, कोई यूज ही नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं गूगल क्रोम को थोड़ा अप करता हूँ, तो गूगल क्रोम को अप करता हूँ तो गूगल क्रोम भी देखो आ गया रनिंग में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं स्विच कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, स्विच कर रहा हूँ, कभी इसको यूज कर रहा हूँ, कभी इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और जैसे ही मैं कुछ न्यू टैब्स वगैरह ओपन करता हूँ, हाइड लोडिंग, हाँ, जैसे मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, न्यू टैब के अंदर में ये कुछ ओपन कर लेता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ 365 डेटा साइंस। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, तो उसका टास्क मैनेजर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी कंजम्पशन बढ़ गया। एक और टैब ओपन करता हूँ, ठीक है, नेटवर्किंग ट्यूटोरियल्स करके मैंने ओपन किया, तो देखो इसका कंजम्पशन और बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यूज करोगे, जिस जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते जाएंगे, उसके प्रोसेस के आगे उसका यूजेज आपको दिखता जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टास्क मैनेजर। तो बात समझ में हम लोग को ये आई कि अगर आप, इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। हाँ, बात ये समझ में आई कि whenever you open an application in operating system, then a process is created in background. A process is created in background. Okay, so we can say a process is nothing but a application program which is in the execution mode. ठीक है, ये सब, ये सारे के सारे आपके एग्जीक्यूशन में, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके एग्जीक्यूशन में, 1 2 3 4 5, ये सारे मतलब जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, ऑल दीज आर इन एग्जीक्यूशन मोड। ओके, जैसे ही आप इसको, इसका एग्जीक्यूशन एंड कर देते हो, तो वो आपका टास्क मैनेजर से भी निकल जाएगा, ठीक है। तब हम उसको प्रोसेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस की डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, process is defined as a program or application program in execution. Okay, तो एग्जीक्यूशन मतलब के रनिंग में है, ठीक है। तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि रनिंग में है, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो टास्क मैनेजर के अंदर यू कैन हैव, task manager में you can have multiple application program which are running. Okay, right now in my case I have Zoom, ठीक है, I have Google Chrome, ठीक है, I have PowerPoint, ठीक है, PowerPoint, I have WhatsApp, okay, I have File Explorer also, that is my file manager मतलब मेरा my computer, ठीक है। तो I call it the File Explorer, ठीक है। So these many application programs are running in my system right now, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस, ठीक है। So all these are nothing but the, even though in physical world we can say these are the application program. This my PowerPoint presentation is the application program. My Chrome is the application program. Okay, my WhatsApp is an application program. My whiteboard is an application program. So all these are nothing but the application program. But when they are in execution, अच्छा, मैं अभी मेरा ब्रेव ब्राउजर अभी ओपन नहीं है, ब्रेव ब्राउजर अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है। कैन आई से इट अ प्रोसेस? क्या मैं उसको प्रोसेस बोल सकता हूँ अभी? sir. No, I No, cannot sir. say it as a process because right now it is not in the execution. Okay, so we can say a program, the application program in we can say any application program as a process when it is in execution mode. ठीक है, अगर वो execution mode में है तो इसका मतलब वो क्या है, process, ठीक है। मैं इसको इतना क्यों आपको मैं एकदम वो रिगरसली बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के बहुत यूज है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बारीकी से समझना है, सो दैट आगे के किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आई थिंक प्रोसेस का आप लोग को समझ में आया, ठीक है। मैंने साइड बाय साइड मेरी स्लाइड्स भी ओपन करके रखी है, बट हम लोग यहाँ से खाली हेल्प लेंगे और फिर हम लोग अपनी अपनी इससे समझेंगे, ठीक है। So basically process concept, a program in execution. Okay, so this is a very simple and common definition which is roaming around operating system people के भाई क्या होता है process? This is nothing but a program in execution. Okay, आगे और लिखा है कि it is an instance of program running on computer. Okay, as you can see मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक instance है, कहाँ पर है, सी पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये है जो आप लोग
देख पा रहे हैं मेरे सामने, लेकिन साथ में इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक इंस्टेंस यहाँ पे रन भी हो रहा है. सो वी कैन ऑल्सो से योर प्रोसेस इज नथिंग बट एन इंस्टेंस, एक छोटा सा एंटिटी आप समझ लो उसको यहाँ पर. तो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, it is an instance of application program or simply program which is running on the computer. Okay, so PowerPoint आपको already run हो रहा है, तो we can say this is an instance of a program or application program which is running right now on my computer system. ठीक है, then entity that can be assigned and executed on processor. एक ऐसी entity process को अलग अलग definition से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है. So this is my third definition I can say about the process, that it is an entity that can be assigned and executed on process. ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर असाइन करने की क्या जरूरत है, वो तो हो ही जाएगा एग्जीक्यूशन. नहीं, हर एक प्रोसेस को असाइन किया जाता है, उसको शेड्यूल किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को शेड्यूलर लगते हैं. शेड्यूलर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ठीक है, तो ये इसको शेड्यूल करते हैं. देन आपका जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका नंबर आने पर उसको एग्जीक्यूट करता है. तो so many things you will be learning during this particular chapter. Okay, so right now the third definition saying that entity, it is an entity, the process is nothing but the entity that can be assigned and executed on process. मतलब उसको हम लोग प्रोसेसर को अलॉट कर सकते हैं कि भाई प्रोसेसर भैया ये हमारा प्रोसेस है, इसको आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो. तो हम लोगों ने असाइन किए और बाद में वो एग्जीक्यूट हुआ. तो वी कैन ऑल्सो से दैट योर प्रोसेस इज नथिंग बट एन एंटिटी दैट कैन बी असाइंड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अ प्रोसेस. ठीक है, सो दीज आर फ्यू डेफिनेशंस व्हिच इज फ्रॉम माय साइड, दैट इज अबाउट द प्रोसेस कॉन्सेप्ट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को उसके हालांकि आंसर बता दिया. What is the difference between program and process? Okay, the difference between program and process. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. अगर ये दोनों का आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात. ठीक है, चलो. So difference between program and process, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, right now on my desktop I have VLC player, I have Google Chrome. ठीक है, GC लिख रहा हूँ मैं, Google Chrome. I have Zoom. I have any other application जिसको मैं बोलूँगा Brave browser मेरा है already. ठीक है, and I have VS Code also. ठीक है, so all these nothing but which you can see actually, that is VLC player which is already installed on my computer system. Google Chrome which is already installed on my computer system. Zoom is already installed in my computer system. Brave and VS Code is already installed in my computer system. All these are nothing but the program. Okay, all these are nothing but the program. They are actually application program. You can call it program or application program, one in the same thing. Okay, so all these are nothing but the application program, which you can see from right side also. Like यहाँ पर मेरा VS Code installed है, तो VS Code जो मेरा है वो मेरे कंप्यूटर में installed है. So you can see VS Code is an application program. Okay, I have installed Zoom also. So Zoom is my application program. I have already installed Brave browser. So Brave is already there in my computer system. So this is my application program. So all these are nothing but the application program which are already installed in my computer system. So these are nothing but the application program. Okay, I cannot call it as a process right now. I cannot call it as a process right now because they are not in the execution mode. Okay, when I will double click on the VLC player and when it will open, okay, that VLC player will be open. So at that moment I can say okay, now VLC is a process because it is an execution. Okay, so we know the basic difference between the program, that is application program, and process. Okay, so कोई भी प्रोग्राम अगर जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आता है वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा. जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा so we can call it as a process. Okay, तो अभी देखते हैं हम लोग इसका एक्चुअल दोनों का डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स मैंने निकाला हूँ. That points will be helpful for your Viva also. ठीक है,
Again I'm saying this is a viva question. What is the difference between application program and a process? Okay, so ये बहुत common viva question है, इसलिए ध्यान से देखो. So difference between program and process. Okay, so I can say your program is nothing, is not a process, and program in execution. Basically दोनों की definition में लिखो. Program is a static entity. Someone can tell me why we are calling it as a static entity? What is the reason behind calling it as a static entity? अरे बोलो. बिकॉज वो एग्जीक्यूशन ठीक से सर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो और रीजन, मुझे और थोड़ा डीप में रीजन चाहिए थी. एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है. चलो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं है तो हम लोग जान रहे हैं. वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ना ही उसको हम लोगों ने स्पेस कुछ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है. ना ही हम लोगों ने उसको मेमोरी कुछ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है. ना ही उसका कुछ असाइन उसको हम लोगों ने किए हैं, ठीक है. तो असाइनमेंट भी नहीं हुआ है. उसको हम लोगों ने शेड्यूल भी नहीं किए हैं, ठीक है. उसको हमने एग्जीक्यूट भी नहीं किए हैं, ठीक है. तो कोई भी सर्विस वो यूज नहीं कर रहा है. ना ही उसको हम लोगों ने स्पेस प्रोवाइड की डिस्क में, ना ही उसको मेमोरी दी है हम लोगों ने, ना ही उसको हम लोगों ने असाइन कर रहे हैं किसी प्रोसेसर को कि भाई देखिए प्रोसेसर के पास में जाके आप एग्जीक्यूशन करवा लो. ना ही उसको असाइनमेंट किए हम लोगों ने, ना ही उसको हम लोगों ने शेड्यूल किए कि देखो तेरा नंबर अभी 2 प्रोसेस के बाद में तेरा नंबर आएगा, तुझे तुझे हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं. या ना ही उसको किसी ने एग्जीक्यूट किया है. तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक एंटिटी, बिकॉज कुछ भी नहीं हो रहा है. दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड, just a line, number of lines, number of instruction which is present on hard disk. So we can call it as a static entity. Okay, so program just desktop पे installed है भाई, और कुछ भी नहीं है, एकदम मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ नहीं यूज कर रहा है. तो static entity, ठीक है. And then later हेलो on, सर. yes please. हाँ सर, स्टैटिक एंटिटी का मतलब क्या होता है? आप यासिर हो? जी सर. अच्छा, एक्सपेक्टिंग. सो यासिर, मैं यही बता रहा था कि जो स्टैटिक एंटिटी होती है वो इसके लिए हम लोग स्टैटिक एंटिटीज को बोल रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ यूर एप्लीकेशन प्रोग्राम, एग्जांपल देता हूँ वापस से मैं, यू हैव अ VS कोड, दिस इज दिस इज वन एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो. यू कैन सी VLC कोड, VS कोड आपके आपके आपकी मशीन में भी होगा, तो एडिटिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं, ठीक है. सो राइट नाउ अभी VS कोड मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन क्या वो ओपन किया हूं मैंने? अभी वो एप्लीकेशन नहीं सर. प्रोग्राम ओपन है नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो VS कोड का जो इंस्टॉलेशन है, जो फाइल्स है, वो कहाँ पर है? वो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पे सेव है, राइट. जी. ओके, जब वो बराबर. हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पे सेव है और अभी फिलहाल ओपन नहीं है, जब ओपन नहीं है तो उसकी फाइल भी यूज नहीं हो रही है. जब यूज नहीं हो रही है तो ना ही उसको हम लोगों ने मेमोरी कुछ दिए हैं, ना ही कुछ उसको हम लोग ने असाइन किए हैं. अच्छा, स्पेस की बात, स्पेस ये आपका हार्ड डिस्क में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है. तो स्पेस की बात हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, बट उसको ना ही हम लोगों ने मेमोरी दे के असाइन किए, ना ही उसको हम लोगों ने शेड्यूल किए, ना ही एग्जीक्यूट किए, कुछ भी नहीं हुआ है. सो राइट नाउ इट इज एन स्टैटिक एंटिटी, ठीक है. राइट नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट थिंक ऑफ अ क्लासरूम, ठीक है. क्लासरूम के अंदर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है. उसमें आप उसमें से अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा और ये बंदा जो है ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक बैठे हैं, कुछ ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, कुछ भी नहीं. Sir, it is mean that program which is in not in use, it's called static entity. Program which is not executing, that अच्छा. is, we can call it as a program basically, and it is a static program, ठीक है. Until and unless you will open it, as soon as you open that particular application program, so it will become a started process. executing. It will become a process, ठीक है. और जब प्रोसेस बनेगा वो, तो उसको हम लोग जाहिर बात उसको हम लोग मेमोरी देंगे, उसको हम लोग असाइन करेंगे, और उसको वो क्या करेगा, हमारा CPU उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है. अच्छा. थैंक यू. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आगे कहाँ पर है? It is a passive entity made up of statement executed by processor, ठीक है.
सो ये इसको हम लोग स्टैटिक एंटिटी बोल रहे हैं, तो ये आपकी पैसिव एंटिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट एन एक्टिव एंटिटी, तो आपका पैसिव एंटिटी है। और क्या क्या बोले भाई साहब ने, प्रोग्राम टेक स्पेस एट अ सिंगल स्पेस इन मेमोरी एंड स्टेज देयर ओन, मतलब बेसिकली आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है और कोई मेमोरी वगैरह कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा है, प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन बाय इटसेल्फ। हमारे पास में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम अभी फिलहाल VS कोड रखा हुआ है, ठीक है। VS कोड हमारे सिस्टम में है लेकिन कुछ कर रहा है वो, इट कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग विद इटसेल्फ, ओके। सेल्फ से तो कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कि हम लोग उसको ओपन ना करें तब तक वो कुछ भी नहीं काम का है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ काम का नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब ये प्रोसेस में क्या बोलते हैं भाई साहब। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। सेकेंड, प्रोसेस इज अ डायनामिक एंटिटी। डायनामिक एंटिटी इसके लिए है कि बिकॉज हम लोग उसको सारी सहूलतें दे रहे हैं, सारी चीजें हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में process is active entity, as we have mentioned that your program is a passive entity, so we can call it as your process can be called it as active entity. when program is loaded into the memory it becomes process। देखो सिंपल एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास में प्रोसेस की। और एक, जब हम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम लोग मेमोरी में लोड करते हैं, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, तो इसको लोड करते हैं, तो लोड करने का मतलब ये हुआ कि आपने उसको स्टार्ट किया है, आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो योर एप्लीकेशन प्रोग्राम will be loaded into the memory now, okay। It means that we have started the application, we have executed the application, okay। और एक और अभी हम लोग बात करेंगे, प्रोसेस डज नॉट मीन प्रोग्राम कोड। और ये छोड़ो ये सब, तो वापस आते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे। पीछे वापस से न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या बता रहा था मैं आप लोग को, हाँ, मोस्ट ऑफ यू प्ले गेम्स, ओके। आपके पास में गेम्स है बहुत सारे। अच्छा, कौन कौन गेम खेलता बताओ जरा। और गेम का नाम भी बताना है, पबजी छोड़ के। Sir, 8 ball pool. होम स्केप, 8 बॉल पूल्स, ओके। और होम स्केप, कैरम। क्या क्या नाम समझ में नहीं आया। सर होम स्केप। अच्छा, वॉर्मस्केप, ये सब आपके मोबाइल के गेम है क्या? यस सर। माइनक्राफ्ट। ये पीसी के गेम बताओ ना, कोई धांसू गेम आप लोग खेलते हो। GTA। NFS। सर FIFA. फीफा, ओके, गुड गुड। Valorant. IGI। ये सब गेमों के मैंने खाली गेम प्ले देखा हूँ यूट्यूब। माफिया। मैंने देखा नहीं। माफिया भी? माफिया कौन सा, ओल्ड वाला या न्यू वाला? एक ही है? ओल्ड वाला। अच्छा, ओल्ड वाला है अभी ना? 2। ओके। यस। तो अच्छे गेमर्स हैं यहाँ पर क्लास के अंदर, काफी सारे गेमर्स हैं। तो ओके, सो ये गेम्स आप लोग खेलते हैं, वेरी गुड। टाइम ज्यादा नहीं लगाने का गेम के अंदर। एक ऐसा एकदम उसकी हैबिट एक बार लगती है, लत लगती है, तो फिर आदमी कितना कितना टाइम, 2-3 घंटा आदमी अपना निकल जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। खेलना कभी कभार की बात है, खेले, इट्स ओके। बट अभी फोकस नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। सो हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। चाहे आपका मोबाइल डिवाइस हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, ठीक है। काफी बड़ी स्क्रीन, वाइड स्क्रीन बना दिया मैंने। तो अब आप चाहे इसमें खेलो या इसमें खेलो, आपके पास में एक कंपोनेंट होता है या एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। रैम के बारे में सबको पता है? अरे रैम के बारे में पता है Yes, सबको? क्या होता है ये Yes, रैम? sir. यस सर। क्या होता है रैम? तो मेमोरी है सर, मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस सर। मेमोरी। कौन कोई सी भी मेमोरी? ऐप यहीं पे memory? लोड होता है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी। पूरा टाइम। इट इज मेन मेमोरी। सर कोई भी ऐप नहीं लोड सर, होता है यहीं पे। सही बोल रहे थे। बोलो बोलो बोलो। कोई भी ऐप। सर जो भी एप्लीकेशन वगैरह चलाना रहता है तो हार्ड डिस्क से और रैम में आता है, फिर रैम
से जो Very है good. हमें प्रोवाइड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? ओके, सब आंसर्स आप लोग की तरफ से आ रहे हैं। गर्ल्स गर्ल्स में से कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं। हर जगह ऐसा होता है कि गर्ल्स आंसर कर रही है और बाकी लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स तो एक भी आंसर नहीं कर रही। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम देम आल्सो, स्पेशली 4 गर्ल्स है डीएसवाई के अंदर, एटलीस्ट पीपल कैन आंसर। ऐसा ना हो इन लोग आगे निकल जाए। हाँ, आप लोग की रेटिंग पीछे जा रही है अभी। गर्ल्स जोश दिखाओ। Okay, so we talk about RAMs. Okay, nowadays we are having, mobile phones having 8 GB RAM, 12 GB RAM. We are OnePlus is providing 12 GB of RAM, 12 GB, 8 GB. Okay, and उसके आगे भी है। और आपका Asus Acer या Asus का जो गेमिंग फोन है उसके अंदर भी अच्छा खासा RAM है। Nowadays people are having, by default configuration more than your laptop. आपके लैपटॉप में 4 GB RAM और i5 प्रोसेसर वगैरह होगा। और रैम तो अभी अगर देखा जाए तो आपके मोबाइल में ज्यादा है। मोबाइल में 8 GB रैम आराम से सबके भी फोन में आ रहा है, या 4 GB तो एकदम कॉमन है। ठीक है, सो दीज आर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वी आर हैविंग। 4 GB है, 8 GB है। ठीक है, हमारे लैपटॉप की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 8 GB आजकल मिनिमम है। तो जिसके बाद 4 GB भी था तो उसने उसको एक्सटेंड करके एनहांस करके 4+4 कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा रैम है। ठीक है, तो आपने सही कहा, बहुत सही कहा कि whenever you open any application, whenever you open any application program in your desktop, in your laptop, in your mobile phone, ठीक है, so it is first loaded into the RAM। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में से उठा के, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क में से उठा के हम लोग क्या करते हैं, रैम में लाते हैं। रैम मतलब आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रैम जो है, रैम क्या करता है, रैम के अंदर एक जगह पे एक स्पेस, एक मेमोरी इसको एलोकेट करते हैं। तो ये इसको हम लोगों ने लोड किया मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माय गूगल क्रोम, माय जूम मीटिंग, माय व्हाट्सएप एप्लीकेशन, व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन एंड फाइल एक्सप्लोरर। सो दीज मैनी 6 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रनिंग इन माय सिस्टम। सो इट मींस दैट के ये सबको कुछ ना कुछ मेमोरी अलॉट हुई रहेगी। ठीक है, अब किसको कितनी मेमोरी अलॉट हुई वो उनके यूसेज पर है। ठीक है, that you can actually see in the task manager कि कौन सा आपका एप्लीकेशन कितना ले रहा है, तो आप सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो आपका गूगल क्रोम इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ऑल दैट। ठीक है, तो कहने का पर्पज ये है कि whenever you open any app, देखो मैंने टास्क मैनेजर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, टास्क मैनेजर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, यू कैन सी योर टास्क मैनेजर इज ऑल्सो रनिंग ओवर हियर। ठीक है, बिकॉज वो भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और जैसे ही मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया उसका भी प्रोसेस यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसी को अगर एंड टास्क करता हूँ, इसको अगर मैं एंड टास्क करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका टास्क मैनेजर ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि whenever you open any application program, so it is first loaded into the memory, okay, I mean to say in the RAM, ठीक है, which is called as the random access memory। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है random access memory। ओके, तो इसको इसमें लोड करते हैं और लोड करके फिर वो एग्जीक्यूशन में आता है। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही हाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका लोड होता है पहले, और लोड होके फिर एग्जीक्यूट होता है, तो आपको सब चीज दिखती है। हाँ, आपका डेस्कटॉप आ रहा है, लॉगिन स्क्रीन आई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके रैम के अंदर सारे application programs are there। All these application program, whenever we double click on those application program, so it is open, those application programs opens and loaded. First they are loaded into the memory, and then वो open हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, या बोलो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसे डबल क्लिक के मैंने उसको ओपन किया तो इट इज लोडेड इनटू द मेमोरी दैट इज इन द रैम, और वो ओपन होके क्या हो जाएगा, टास्क मैनेजर में एक छोटा प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने दूसरा वाला ओपन किए, वो भी लोड हुआ मेमोरी में, वो भी आपका प्रोसेस बन गया। थर्ड वाले को लोड किए मेमोरी के अंदर, वो भी लोड हुआ मेमोरी के अंदर और उसका भी प्रोसेस बन गया। ठीक है, इन दिस वे यू कैन ओपन एज मेनी एप्लीकेशन एज योर रैम कैन सफर। ठीक है, जितना रैम आपका बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना अच्छा रैम होगा, अरबी रैम ज्यादा वाला लो, उससे थोड़ा क्या होगा, एफिशिएंसी
बढ़ेगी और थोड़ा सा स्पीड आपको अचीव होगी, आपको स्पीड अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं कि इसके अंदर रैम बढ़ा लो। और लास्ट ईयर मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चल रहा था मेरे कॉलेज के लैपटॉप पे, तो समवन सजेस्ट मी के 4 GB में कुछ नहीं होने वाला, 4 GB और ऐड कर लो, एनहांस कर लो। मैंने 4 GB में और ऐड कर लिया, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। बट ऑलमोस्ट आई थिंक आपने देखा होगा, वी हैव मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विच आर very heavy application like Android Studio. It is taking around 4 GB या around 4 और 5 around 5 GB तक वो मेमोरी खा लेता है, ठीक है। तो दूसरे प्रोग्राम जब को नहीं मिल पाती है तो फिर आपका सिस्टम लैग करना शुरू होता है, आपका सिस्टम स्लो होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं कि रैम अच्छा होना चाहिए, रैम ज्यादा होना चाहिए, तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को इजीली हैंडल कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम तो सर तो इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कौन सी प्रॉब्लम से? सर जैसे कि आपने बोले अभी, तो मेरे पीसी में 8 GB भी है लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं कुछ Android Studio से support नहीं, परेशान हूँ, प्रोसेसर कौन सा है, कैसे ओवरकम प्रोसेसर? कर सकते हैं? i3 11 जनरेशन। i3 11 जनरेशन, ओके। साथ देखो, साथ में अभी आप दो आपके लेवल्स हैं, अब दोनों दोनों लेवल्स के अंदर आप एक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो, तो दूसरे वाले को भी थोड़ा बहुत आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेरा भी i3 पे चलता था, मेरा जो उस टाइम पे था वो i3 था, लेकिन i3 पर उतना मुझे एफिशिएंट रिजल्ट नहीं आता, उतना मेरा सही से नहीं चलता। इवन मैं उस वक्त में उसको लिनक्स में इंस्टॉल किया था, लिनक्स में मैं चलाता था, लेकिन फिर भी वो मुझे उतना एफिशिएंसी से नहीं चलता था, मतलब एग्जीक्यूशन सही नहीं चलता। फिर भी जैसे तैसे काम चला। नाउ आई एम रनिंग इट ऑन माय i5 प्रोसेसर, सो इट इज रनिंग स्मूथली। तो और उसके अलावा फिर एसएसडी भी आपके पास में एसएसडी है या एचडीडी है? HDD। एचडीडी है, तो दिस इज अगेन वन रीजन कि आपका जो एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है ना, ये आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, इन सब की मोनोपोली होती है। ये बड़े बड़े जो एप्लीकेशन वाले होते हैं ना, ये सब अपनी एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि आपको एनी टाइम आफ्टर 2 years यू हैव टू रिप्लेस योर कंप्यूटर मशीन, ओके। क्या करना पड़े आपको, ये एक्सटेंड करो, वो एक्सटेंड करो, रैम बढ़ाओ, ये प्रोसेसर चेंज करो, या एसएसडी डाल लो। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं सजेशन आते रहेंगे, ये सब उसी का पर्पज है। तो अगर आप उसमें एसएसडी अगर एक 128 GB की एसएसडी डाल दो, ठीक है, और आपका रैम 4 GB अगर है तो 8 GB कर लो, और 8 GB है तो इनफ है। और अगर आप थोड़ा सा प्रोसेसर पे ध्यान दे दो तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। उसके लिए रोकड़ा लगेगा और कुछ नहीं। यस सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली देखो ये है। और अब अगर देखोगे तो वी हैव अदर एप्लीकेशंस आल्सो, लाइक वी हैव ऑटोकैड, ओके। ऑटोकैड भी आपका काफी हैवी एप्लीकेशन है। यू हैव कुछ आर्किटेक्चर वालों के, सिविल वालों की भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि काफी हैवी है, और वो जैसे ही वो लोड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 4 GB रैम है और 4 GB में अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को ही 4 GB के ऊपर लगता है, तो आपका सिस्टम एकदम स्टक कर जाता है, बिकॉज उसने इतनी सारी फाइल वहां से लोड करके मेमोरी में ला के रख दिया है, तो अब वो कैसे हिल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। इवन इफ यू विल ओपन माई कंप्यूटर भी अगर आप ओपन करेंगे, जो कि बहुत ही कम लेता है, तो वो भी उसको ओपन करने देगा नहीं, बिकॉज जगह ही नहीं बची, कहाँ से ओपन करेगी भाई, ठीक है। तो रैम आपका इनफ होना चाहिए, सो दैट यू कैन ओपन एज मेनी एप्लीकेशन एज यू कैन, योर रैम कैन सफर, ठीक है। तो जितना सफर कर सकता है उतनी आप ओपन करो, तो सब कुछ ठीक हेलो सर। यस यस सर, यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर वो एसएसडी और रैम में क्या डिफरेंस होता है? एसएसडी और रैम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करो, अगर आप एसएसडी की, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका जो कंपैरिजन आप कर सकते हैं वो एचडीडी से कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, आपका डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। दोनों के दोनों आपके डिस्क स्टोरेज है, एचडीडी और एसएसडी। एचडीडी के अंदर ये था, मैं आपको एग्जांपल दूंगा खाली। एचडीडी इज लाइक आपका सीडी ड्राइव, ठीक है। आपका सीडी ड्राइव में क्या होता है, आप सीडी डालते हो, आपने यूज किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन सीडी आपको पता है, सीडी ड्राइव, ठीक है। डीवीडी राइटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो या इन अर्लियर डेज वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ सीडीज विद अस, ओके। सो वी यूज्ड टू स्टोर आवर कंटेंट इन द आपके सीडीज में, सीडी डीवीडी के अंदर। सीडी की साइज कितनी थी बताओ, सीडी की साइज कितनी, कोई बताएगा मुझे? 700 MB। 700 MB। और डीवीडी की बोलो जल्दी।
अराउंड 4 GB के आसपास हुआ करती थी। हाँ 2-4 4.5 GB के हाँ, आसपास। 4.5 या 4.7 कुछ GB तो होती थी DVD, और एक होती थी ड्यूअल DVD भी होती थी, और एक होती थी ब्लू रे वगैरह ऐसे भी होती जिनकी कैपेसिटी अराउंड 8 GB तक होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आपके थे। तो HDD इज लाइक योर CD DVD एंड ऑल दैट। जब CD को आप जब रखते हैं DVD राइटर में और जब उसको अंदर भेजते हैं तो क्या होता है पता है? उसका जो हेड होता है ना, DVD राइटर का हेड, वो क्या करता है, जहां से डेटा आपको एक्सेस करना है तो वहां पे जाएगा और वो वहां पे जाके काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपका हेड वहां पे जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको सामने डिस्प्ले करता है। तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि HDD के अंदर भी ऐसे ही कुछ है। HDD आपका जो है ना, आपको डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत टाइम लगता है इसको, और डिस्प्ले करने के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन आपका SSD इज लाइक योर पेन ड्राइव। SSD इज लाइक योर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को जैसे ही आपने प्लग इन किया, कड़क से सामने की स्क्रीन ओपन होती है और सारा कंटेंट आपको दिख जाता है। तो ये क्या हुआ, हाँ, ये आपको जो है ना एक्सेस टाइम बहुत फास्ट देता है। SSD आपको एक्सेस टाइम बहुत फास्ट देता है, एग्जीक्यूशन एकदम फास्ट देगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब उनके मैंने देखा, तो उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने आपने प्रोसेसर अगर नहीं भी बढ़ाया और अगर आपने एक SSD लगा लिए, 8 GB के साथ में SSD लगा लो, तो भी आपके परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो SSD इतना अच्छा काम कर उसका उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और काफी महंगी भी आती है एज कम्पेयर टू द HDD। सो अगर आपके लैपटॉप वगैरह चूज कर रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, तो वहाँ पे यू जस्ट मेक श्योर दैट के यू बाय SSD इन प्लेस ऑफ HDD। ठीक है, और लोग रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन भी आता है कि आपके पास में आपको वो लोग 1 TB HDD देंगे और 128 GB आपको SSD देंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो भी चलेगा। उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपका ये SSD यूज होता है। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम फटाफट क्विक लोड भी होगा, रन भी होगा, मतलब स्टार्ट करेंगे स्टार्ट भी होगा। ठीक है, जब आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह रन करेंगे तो भी आपका SSD में मतलब इंस्टॉल्ड होगा, तो वो भी क्विकली एक्सेस हो जाएगा। एंड आई थिंक 128 GB इज इनफ। इवन अगर आप चाहते हो तो 256 भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो जस्ट फॉर सी ड्राइव, मतलब आपके सी ड्राइव के लिए, या फिर जिसको बोलेंगे हम लोग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अगर आप SSD यूज करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू स्पीड अप एंड टू गेट गुड परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और बाकी स्टोरेज अगर आपको चाहिए कचरा भरना है तो आपको HDD में डाल सकते हैं। ठीक है, आई एक्चुअली मैं उसको मैं प्रीफर ही नहीं करता हूँ, अगर आप नहीं रहो तो ये अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैक वगैरह जो एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं, उसमें SSD के सिवा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें या तो 128 या 256 या 500 या 512 जिसको भी बोलो, तो इतनी ये कॉन्फ़िगरेशन में वो होती है उनके पास में SSD। ठीक है, और अभी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो हाई एंड लैपटॉप्स आ रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमबुक क्रोमबुक नहीं, अच्छा उसका नाम था मेरे ध्यान में, नाम ध्यान से निकल गया। जेन बुक अलग अलग बुक है, जैसे मेरे पास में अभी Asus की वीवो बुक है, तो जो ये वीवो बुक है, क्रोम बुक है, तो ये अलग अलग उनके वो है जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडल्स है। बट इसको हम लोग चलो मैं नाम आया तो आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा इसके अंदर खाली 128 256, तो इनका काम ही नहीं है, इन लोगों को मतलब कम से कम दो और वो अच्छी चीज दो। मतलब ये ऐसा है कि SSD आपकी क्वालिटी वाली चीज है, तो कम खाओ लेकिन क्वालिटी वाला खाओ, और HDD इज नथिंग बट क्वालिटी वाला नहीं, एकदम बस दे दो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोग काफी सारा ऑफ ट्रैक भी चले गए थे। So let me recap what we have done in this session is all about we have done process. We have started with the process management. We have done what is actually process and what is actually application program. Okay, we have seen the definitions also, and we have seen the difference between the process and application program. और उसके बाद में यहाँ वहाँ की नॉलेज काफी सारी हमारी चलती रही। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, हम लोग आज रुकते हैं।